اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صلی اللہ علیہ محمد وعلی عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ ولایت اور سیاسی شعور۔ حضور والا اس موضوع پر گفتگو چل رہی ہے اور میری کوشش یہی ہے کہ مختلف نظریات، مختلف حکایات اور مختلف سیرتوں کے ذریعے اذہان عمومی میں وہ ولایت کا مفہوم پہنچایا جا سکے جس ولایت کو قرآن نے اور اہل بیت نے بیان کیا ہے۔ چونکہ بعض اوقات یعنی ہمارے ذہنوں میں پائی جانے والی وہ باتیں کہ جو ہم اپنے منشا کے مطابق، اپنی جانکاری کے مطابق، اپنے علم کے مطابق جس ولایت کے معنی کو اپنے لیے موزوں سمجھتے ہیں، اپنے لیے مناسب سمجھتے ہیں اور اپنی چاہت کے مطابق اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، قرآن ایسی ولایتوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ایک حصہ وہ ہو جاتا ہے کہ جن کا ولی اللہ ہوتا ہے، ایک حصے میں وہ چلے جاتے ہیں جن کے ولی غیر الہی اور غیر اللہ ہو جاتے ہیں، جن کے ولی طاغوت اور شیاطین ہو جاتے ہیں۔ قرآن ان چیزوں کو الگ کرتا ہے اس لیے تاکہ حضرت انسان ذرا سا غور کرے، فکر کرے، سوچے اور سمجھے کہ میں جو زندگی بسر کر رہا ہوں کس کی ولایت کے زیر سایہ ہے؟ آیا اللہ کی، اہل بیت کی، یا طاغوت یا شیاطین کی؟ یہ فرق ہے۔ اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ہم مصادیق پر، مصداق میں فرق کر دیتے ہیں، یعنی مفہوم صحیح ہوتا ہے لیکن مصداق میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے معلوم دیا کہ پروردگار عالم اعلان کرتا ہے تمہارا ولی اللہ ہے، کس نے انکار کیا؟ تمہارا ولی رسول ہے، تمہارے ولی صاحبان امر ہے۔ اب اللہ تک تو ہم نے مان لیا، رسول کی ولایت کو بھی ایک حد تک ہم نے، یہ میں اذہان عمومی کے لیے باتیں کہہ رہا ہوں کہ رسول کی ولایت کو بھی ایک حد تک مان لیا، لیکن جہاں پر صاحبان امر کی بات آئی وہاں پر ہم کیا ہو گئے؟ لٹک گئے۔ لٹک کیسے گئے؟ صاحبان امر میں آ کر کے مصداق میں کنفیوز ہو گئے۔ اب جب مصداق میں کنفیوز ہو گئے تو ہم نے صاحبان امر سے مراد وہ انسان جو طاقتور ہے، جو پاورفل ہے، ہم نے اس کو لے لیا کہ جو معلوم دیا سلاطین، بادشاہ، حکومت پر، حکومت کی گدی پر بیٹھنے والا انسان، ہم نے کہا اولی الامر یہ، یعنی مفہوم ہم نے صحیح سمجھا لیکن مصداق میں غلطی کر بیٹھے۔ آج یہی غلطیاں
اگر آپ غور کریں، فکر کریں، ذرا سا سوچیں اور سمجھیں تو یہ غلطیاں عمومی حالات میں، عمومی انسانوں میں، اور زیادہ تر اگر غور کیجئے تو یہ جو عمومی مسلمان ہیں ان کے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں۔ مصادیق میں غلطیاں زیادہ ہیں، مصداق میں غلطیاں زیادہ ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ صاحبان امر سے مراد اللہ نے کس کو لیا اور صاحبان امر سے مراد ہم نے کس کو لیا؟ اب علیہ السلام جب یہی مصداق میں کنفیوژن ہوا تو ظاہر سی بات ہے نتیجے میں کیا ہوگا؟ نتیجے میں بھی غلطی ہو جائے گی۔ ایک مثال دیتا ہوں آج کل کے حالات کی بنیاد پر۔ جیسے SIR چل رہی ہے، صحیح ہے؟ اب وہاں پر تھرڈ کالم میں مانگا گیا ہے ڈیٹیل آپ سے سمبندھی کا نام اور سمبند، صحیح ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں اور یہیں سے آپ سمجھیے گا سمبندھی کا نام اور سمبند۔ یہ بتا دیجئے سمبندھی کون ہوا؟ مطلب جس میں مانگا گیا ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، صحیح ہے؟ سمبند کیا ہے؟ اب آپ اس میں ڈیٹیل کیجئے گا۔ اب یہیں پر بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں۔ پہلے کالم میں جہاں پر نام ہے وہاں پر لکھا باپ کا نام، جہاں پر لکھا ہے سمبندھی کا نام یہاں پر کس کا نام آیا؟ باپ کے باپ کا نام آ گیا دادا کا، ماں کا نام لکھا تو آ گیا نانا کا نام، صحیح ہے؟ دادی کا نام لکھا تو آ گیا دادا کا نام۔ اب ذرا سا بتائیے سمبندھی میں آپ نے تو سوچ کے لکھا فادر، نیچے آپ نے دیا بھی، لیکن جب وہ کالم بھرا گیا تو کس کا بھرا گیا؟ یہ میں نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے۔ اب آپ ذرا سا بتا دیجئے بات صحیح ہے لیکن مصداق غلط۔ اب جب یہ ڈاٹا کمپیوٹر پہ جائے گا تو ریجیکٹ ہوگا یا ایکسیپٹڈ ہوگا؟ سلوات پڑھیے کم سے کم۔ میری بات آپ ذرا سا غور کیجیے گا، یعنی یہ باتیں میں نے سامنے سے وہ کی ہے تاکہ آپ اس چیز کو ذرا سا کنفیوژن سے دور نکلیے، کیونکہ مصداق میں غلطی آئی تو دقت ہو جائے گی، اور جب مصداق میں دقت ہوئی تو ظاہر سی بات ہے جتنا ڈاٹا اور آپ نے انفارمیشن دی ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ غلط ہو جائے گی۔ اور یہیں پر علیہ السلام، یہیں پر اگر آپ ذرا سا غور کیجئے، اگر آپ جہاں پر نام ہے یہاں پر آپ اپنا نام لکھتے ہیں، سمبندھی کا نام باپ کا نام لکھتے ہیں، اب سمبند میں جب فادر لکھیں گے تو ڈکلیریشن کس کا ہوگا؟ جو آپ رشتہ دے رہے ہیں۔ میری بات ذرا سا غور کیجئے گا، میں سمجھا بھی رہا ہوں، زمانے کے حساب سے بتا بھی رہا ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فارم صحیح ملا، آپ کے ذہنوں میں مفہوم صحیح ہے لیکن مصداق میں غلطی ہو گئی۔ اب جب مصداق میں غلطی ہو گئی تو معلوم دیا ابا کی جگہ پہ دادا آ گئے، دادا کی جگہ پر کوئی اور آ گیا۔ ہم نے سمبندھی میں نام دیا باپ کا نام، وہ باپ کے نام سے میچ ہی نہیں ہوا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ میں زمانے کے حساب سے مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیے اس چیز کو۔ کیوں؟ کیونکہ ولایت اپنا صحیح معنی رکھتی ہے، لیکن جب ہم مصداق میں آتے ہیں تو کیا کر بیٹھتے ہیں؟ کہتے ہیں صاحب جہاں پر یہ 12 ہیں وہیں پر اگر 4 کا بھی اضافہ کر دیا کیا دقت ہے؟ یہ بھی ہے کیونکہ مصداق میں آ کر کے جیسے ہم نے بتایا کہ صاحبان امر سے مراد کس کو لیا؟ کہا جس کے ہاتھ میں ستہ، جس کے ہاتھ میں پاور، جس کے ہاتھ میں اقتدار، جس کے ہاتھ میں سب کچھ، کہا وہ صاحبان امر۔ تو اب کیا اسی طریقے سے آپ اپنے گھر کے اندر ماں باپ کو صاحبان امر کہیں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں سرپرست۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے معنی کو استعمال تو کیا لیکن مصداق میں غلطی کر بیٹھے۔ مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو ذرا سا سمجھیے۔ موضوع کیا ہے ہمارا؟ ولایت اور سیاسی شعور۔ علیہ السلام ہم نے موضوع کو بھلا دیا، ہم نے کہا مولانا صاحب تو خطبہ دے رہے تھے، وہ SIR کے اوپر گفتگو کرنی ہے، بتائیے کوئی بات ہوتی ہے؟
जबकि हमने SIR के सिर्फ मिसाल दी मिसदाक को समझाने के लिए, लेकिन एक सादा लो इंसान क्या समझेगा? कहेगा साहब खुतबा देते हैं, सियासत करते हैं। जबकि मफहूम क्या है? मफहूम पहुंचाना चाहते हैं विलायत और सियासी शऊर। सियासी शऊर का मतलब क्या हो गया? सियासी शऊर का मतलब ये हो गया कि आपके अंदर हालात के मुताबिक सूझ समझ, आपके अंदर टैलेंट, समझने की सलाहियत, हालात को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन सही क्या होना चाहिए अलैहिस्सलाम। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो उजलतबाज लोग होते हैं ना, वो क्या कर देते हैं, वो हर चीज को एक नजरिए से देखते हैं। जैसे कुरान को आइए, कुरान ने विलायत के मिसदाक को कई जगह पर इस्तेमाल किया। एक जगह पर कहा कि साहब तुम्हारा वली अल्लाह, एक जगह पर कहा कि वो लोग कि जो ईमान नहीं लाए हैं उनका वली कौन है? औलियाहुमुत तागूत। उनके वली कौन है? तागूत हैं, सरकश हैं, शयातीन हैं। यानी जब विलायत को हमने अलैहिस्सलाम यानी इन चीजों में बदल दिया, इन चीजों के मिसदाक में अलग कर दिया। अब बाद लोगों ने शैतान को कहा, अरे साहब आप शैतान किसे समझते हैं? कहा बस जमाने में एक ही शैतान था जिसको अल्लाह ने अपनी बारगाह से क्या किया? निकाल दिया। अब जब निकाल दिया तो सवाल ये है, जिंदा है मर गया? वो मोहलत लेकर के आया इला वक्त मालूम। वक्त मालूम से मुराद कयामत तक, कयामत तक की मोहलत वो लेकर के आया। अब जब लेकर के आया तो आप जरा सा बता दिए, शैतान एक है या उसके भी पूरे सिलसिले हैं? पूरे सिलसिले हैं। अब आइए कुरान का मैं मिसदाक दिखाता हूं। आप जब सूरह नाज पढ़िए, सूरह फलक पढ़िए, ये दो सूरतें सूरतें मऊज़तैन कहा गया। कहा गया नहीं कहा गया? मऊज़तैन, यानी इन दो सूरों में क्या किया जाता है? पनाह मांगी जाती है। मऊज़तैन इसीलिए कहा गया, पनाह मांगी गई। अब आप जरा सा बताइए, अल्लाह ने औलिया के मिसदाक को बता दिया कि जो ईमान लाए उनका वली कौन? अल्लाह, रसूल और साहिबान अम्र। जो ईमान नहीं लाए उनके वली तागूत है, शयातीन है। अब मिसदाक में आइए तो आप क्या पढ़ते हैं? इन मऊज़तैन पढ़िए जरा सा, पढ़िए। कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़िए। जब आप यहां से पढ़ते हैं कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कह दिए पैगंबर कि मैं लोगों से क्या करता हूं? पनाह मांगता हूं। परवरदिगारा, ये लोग कौन हैं? कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये वो लोग हैं जिनसे मैं पनाह मांगता हूं। मलिकिन नास, आइए और आगे, इलाहिन नास। उसके बाद आकर के ओपन कर दिया। ओपन क्या कर दिया? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। परवरदिगारा, जब तूने मिसदाक बताया था तो ये वसवास और खन्नास का मतलब क्या हो गया? वसवास वही जो हम कान में फूंकते हैं। पूरी गुफ्तगू मौलाना ने 1 घंटे की पढ़ी, हमने कहा क्या पढ़ा? चिपका दिया फला साहब के ऊपर। जो बेचारा अच्छे से मजलिस सुन करके माइंड फ्रेश था, उसके माइंड को एक लम्हे में हमने क्या किया? डाइवर्ट कर दिया, उसको चिपका दिया। कहा ये है वसवास। ये एक मिसदाक है, ये है वसवास। मिन शर्रिल वसवास का खन्नास क्या है? खन्नास वो है जो लोग फितना और जिनके दिलों में, जहनों में फुतूर पाया जाता है।
यानी जो हमेशा निगेटिव सोचते हैं, यानी उनके अंदर सोच जो है कभी क्रिएटिव आ ही नहीं सकती, का ये खन्नास है। और कभी आप समाज में बात कीजिए तो हमेशा वो उल्टी ही बात करते नजर आएंगे, सीधी बात उनकी समझ में, कहा ये खन्नास है। परवरदिगारा मिस्दाक तो तूने बता दिया था साहब वहां वहां वहां, अब यहां पर आकर के तूने सूर्य में क्यों कह दिया मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। उसके बाद फिर कहा अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, अल्लज़ी वो लोग युवस्विसु वसवसा पैदा करते हैं फी सुदूरिन नास लोगों के दिलों में। ये जो लोग आकर के, अभी रात की गुफ्तगू अगर आपने सुनी होगी तो मौलाना ने कहा था 3 घंटे हम कहां बैठते हैं और 1 घंटे की मजलिस सुनने में बहुत फर्क है। लम्हे फिक्रिया है मेरे अज़ीज़ों कि जब हम यानी अपना वक्त आम हालात में गुजार सकते हैं बैठ करके, तो अहले बैत के लिए क्यों नहीं। सही है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ये वसवसा पैदा करते हैं लोगों के दिलों में। मिनल जिन्नते वन्नास, ये किन में से हो सकते हैं, जिन्नातों में से और इंसानों में से। यानी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि इंसान बाज आकर के खबासत, ज़हनियत, मेंटालिटी को क्या कहते हैं, खराब कर देते हैं। अब जब खराब कर देते हैं, कुरान कहता है पढ़ो औज़ बिल, यही मौज़त है, कुल औज़ बिरब्बिन नास, पढ़ो तो कुल औज़ बिरब्बिल फलक, पढ़ो, इन दोनों को दम करो। यही वजह है कि जिनके ऊपर कभी कभी शयातीन का गलबा हो जाता है तो यही सूरे पढ़ करके दम कर दिया जाता है तो रिलीफ मिल जाता है। यानी ये ऐसे हो गया जैसे मालूम दिया एंटीबायोटिक हो गया। सही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यही चीज नहीं समझते। कभी आप समझिए, एक चीज और मिसाल लेता हूं वसवसे की, क्योंकि गुफ्तगू में कहीं और ले आया, मौजू ज़हन मेरे गुफ्तगू समझ में आएगी, नतीजा भी समझ में आएगा। अच्छा खासा हम जी रहे थे अपने घर में, एक साहब एक साहिबा कोई भी आया, उसने अच्छे खासे जहन को खराब कर दिया। ए, तुम यहां पढ़ जाओ, तुम्हारा शौहर तो काम है, तुम यहां पे, तुम्हारी बीवी तो मालूम मार्केट में मार्केटिंग करने नहीं गई है, टहलने गई है। लफ्जों को जरा सा समझिएगा। इसने क्या किया, वसवसा पैदा कर दिया। यानी जो अच्छी लाइफ गुजार रहे थे उन पूरी लाइफों को शक के दायरे में ला करके क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। अब ये बता दिए वसवसा किसने पैदा किया, कि इनको पकड़ करके हम कभी लाते हैं कि तुमने अगर हमारे घर के अंदर जहनों को खराब ना किया होता तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, नहीं लाते। और इनको हम कभी तलाशते भी नहीं है, हम आपस में लौटे हैं कि तुम हम पे इल्जाम लगाओ, पलट करके उसने 10 बातें कही, पलट करके उसने 5 बातें कही, पलट करके इन्होंने 2 थप्पड़ मारा, पलट करके उसने गिरेबान पकड़। एक मिसाल दे रहा हूं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है ये, लेकिन गौर कीजिए, ये एक उमूमी मिसाल दे रहा हूं। वसवसा किसने पैदा किया, शुबहात किसने पैदा की है, मुश्किलात किसने पैदा की, हम उसको तलाशते ही नहीं। तो इंसान जब पता नहीं करेगा तो आप बताइए, इसीलिए कहा जाता है कि ये मऊज़तें पढ़ते रहो ताकि किसी का नाम लिए बगैर जो जिन्नातों और इंसानों में से शैतानत का काम करते हैं उनको दूर करते रहो। सलवात तो पढ़िए कम से कम। सही है। तो जो बातें मैं अर्ज कर रहा था कि हम विलायत को तो कबूल करते हैं, लेकिन मिस्दाक में आकर के क्या कर लेते हैं, कंफ्यूजन पैदा कर लेते हैं। मिस्दाक में आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किसको मानना चाहिए। ऐसे ही मिस्दाकों में आकर के जब आप तलाशिएगा तो आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये अय्याम अज़ाए फातिमिया चल रहा है, बहुत सारे लोगों को शहजादी की अजमत का एहसास ही नहीं है। जबकि अगर आप देखिए तो हदीस कुदसी बाकायदा तौर पर, ऐसा नहीं है कि ये खाली हदीस कुदसी सिर्फ हमारे यहाँ किताबों में पाई जाती, नहीं, हदीस कुदसी जहां पर नकल की गई है वहां ये हदीस पाई जाती है
جس میں جا کر کے جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کو کیا کیا گیا ہے؟ بیان کیا گیا ہے۔ اور بیان کیسے کیا گیا ہے؟ بیان ایسے کیا گیا کہ سب سے پہلے یہی کہا گیا لولا کا لما خلقت الافلاق، یعنی یا محمد ہو، محمد تو وہاں پر نہیں، یا احمد ہو، احمد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لولا کا، اگر آپ نہ ہوتے، آپ نہ پیدا ہوتے، لما خلقت الافلاق، تو میں فلک میں، افلاق میں، یعنی افلاق کا شمار زمین اور آسمان میں، ان کو خلق نہ کرتا۔ حدیث قدسی کہتی، کس سے کہہ رہی ہے؟ جس حبیب کے بارے میں کہتی ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ صحیح ہے، کبھی تاہا کہا، کبھی یاسین کہا، کہا نہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، حدیثوں کے نہیں، کہا۔ اور ان کے بارے میں کہا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ زمین اور آسمان ہم خلق نہ کرتے۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر کے لولا علی، اور اگر علی نہ ہوتے، لما خلقتو، تو ہم آپ کو نہ خلقاتے۔ میری اس کا مطلب آپ ہیں تو یہ کائنات ہے، علی ہیں تو آپ ہیں۔ اس کے بعد کہا لولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی، لما خلقتکما، ہم تم دونوں کو خلق نہ کرتے۔ اب ذرا سا ولایت کا احساس کیجئے کہ جو ولایت اللہ کی طرف سے چلی تھی، رسول کی طرف سے چلی آئی، صاحبان امر تک آئی، وہ آ کر کے یعنی حدیث قدسی کے مصداقوں میں سے ایک ولایت آ کر کے اس جگہ پر ٹھہر گئی کہ اگر فاطمہ نہ ہو تو یہ دونوں نہیں ہوں گے۔ اور جناب فاطمہ کو علیہ السلام، جناب فاطمہ کو حجاب الہی کہا گیا، جناب فاطمہ کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے حضرت انسان، جیسے تم آج تک لیلۃ القدر میں اٹکے ہوئے ہو، ایک کلیئر تاریخ نہیں بتا سکتے کہ کون سی شب لیلۃ القدر کی ہے، کہ شب 19 ہے، 21 ہے، 23 ہے، 27 ہے، 25 ہے، آخر 29 ہے، ابھی تم کنفیوژن میں ہو، تو تم حقیقی ولایت کو کیسے سمجھ سکتے ہو کہ یہ ولایت محمد ہے، یہ ولایت علی ہے، یہ ولایت فاطمہ، کیسے سمجھ سکتے؟ غور کر رہے ہیں؟ اب یہیں پر ذرا سا نتیجہ میں دینا چاہتا ہوں، نتیجہ یہ دینا چاہتا ہوں، عنوان کیا ہے؟ ولایت اور سیاسی شعور۔ اب اگر یہ ولایتوں کا تذکرہ ہم نے کیا، اگر جب ابھی تک ہم ولایت کو ہی نہیں پہچان پائے تو سمجھ کیسے آئے گی؟ سیاسی شعور کیسے آئے گا؟ یہی وجہ تھی کہ بعد وفات پیغمبر بہت سارے لوگ پیغمبر کے دروازے کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر دروازے پر کیا ہوئے؟ براجمان ہو گئے۔ اب جب براجمان ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے نہ ولایت کے معنی کو سمجھا، نہ ولایت کے مصداق کو سمجھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین، وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں
सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि रसूल अकरम इंसानी करामत के अलम बरदार। सही है, मौजू जहन में है, मौजू जहन में रह गया, गुफ्तगू जाहिर सी बात है समझ में आएगी, और अगर मौजू जहन में नहीं रहा तो गुफ्तगू समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी गैर मुस्लिम के सामने आप बैठ करके एक साहब कुरान उसे पढ़ पढ़ के सुनाए, वो कहे मैं तो समझता ही नहीं हूं। लेकिन आज के ज़माने में अगर इंसान समझना चाहे तो समझ सकता है। टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पर हम आ करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आज ज़रूरत है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत। चूंकि जब तक हम रसूल अकरम को नहीं पहचानेंगे तब तक हम इन्हें आइडियल कैसे बना सकते हैं। यानी पैगंबर अकरम इंसानी करामत के अलमबरदार। हम इंसानी करामत को समझें। करामत का मतलब वो नहीं है जो हम उर्दू में चमत्कार ले लें। हिंदी में हम चमत्कार कह दें, उर्दू में हम एजाज कह दें, और अगर अरबी में चले जाएं तो मोजज़ा कह दें। सही है ना। मैं इसलिए अल्फाजों को वो कर रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझिएगा कि चमत्कार कभी नजरों का धोखा होता है, हो सकता है, और कभी चमत्कार एक ऐसी ताकत का मिलना हो सकता है जो अनहोनी हो, उसे कहते हैं चमत्कार। सही है। लेकिन क्या पैगंबर इन्हीं चमत्कारों में से एक है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि हमने पैगंबर को चमत्कार नहीं माना है, हमने पैगंबर को इंसानी करामत का अलमबरदार माना है। यानी आपने आकर के इंसानियत को, जो मानवता है, उसको आपने समाज में फैलाया और बढ़ाया। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ मानवता नहीं है, हमारे यहाँ मतलब है। और इसी मतलब के साथ एक लफ्ज और इस्तेमाल होता है, मतलब परस्त और मतलब परस्ती। दोनों के अलग अलग माना है, मतलब परस्त और मतलब परस्ती। जैसे सरपरस्त और सरपरस्ती, फर्क समझ रहे हैं? सरपरस्त एक नाम का हो सकता है, लेकिन सरपरस्ती जिम्मेदारी के उठाने का नाम है। यानी जब हम जिम्मेदारी उठा रहे होंगे तो कहेंगे सरपरस्ती कर रहे हैं। और सरपरस्त में अगर ऐसे ही मालूम दिया हम जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, लेकिन कहा जाता है हाँ भाई ये भी हमारे चचा हैं तो सरपरस्त हैं, मामू हैं तो सरपरस्त हैं, खालू हैं तो, लेकिन हकीकत में निभा कौन रहा है? बाप निभा रहा है, दादा निभा रहा है, दादी निभा रही है, माँ निभा रही है, नाना निभा रहा है। मैं मिसाल दे रहा हूं। तो ये फर्क है। तो ये जब तक माना अपने मफाहिम तक नहीं पहुंचेगा, अजहान तक नहीं पहुंच सकता। और जब अजहान तक नहीं पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। और जब समझ में नहीं आएगी तो फिर इंसान क्या करेगा? अंधे में तीर चलाएगा। और हमारे यहां उर्दू में एक कहावत है, अंधों में काना राजा। यानी उसके पास भी दोनों आंखें नहीं है, लेकिन चूंकि जिसके दरमियान रहे उनके पास तो कुछ भी नहीं है, जिनके दरमियान है उसके पास कुछ है, तो किसे कहते हैं? अंधों में काना राजा। ये कभी कभी बहुत मुश्किलात पैदा करते हैं, क्योंकि ये जितने जिनको ब्लाइंड नजरिए के कायल होते हैं, ब्लाइंड बिलीव करते हैं, उनको अगर आप जरा सा देखिए
तो कभी वो सोच और समझ तक नहीं जाते, वो कभी डीप में जाने की कोशिश नहीं करते। वो कभी कभी ऐसे काम कर जाते हैं जिनके पास दूरंदेशियां नहीं होती हैं। तो जैसे हम लोगों ने अपने जमाने में एक किताब पढ़ी थी, उस किताब में एक मिसाल दी गई थी कि अंधों की बस्ती में एक हाथी लाया गया और कहा गया कि तुम लोग इसको छू करके बताओ कि हाथी कैसा है, समझिएगा हाथी कैसा है। तो अब जाहिर सी बात है, सब अंधे थे। किसी ने सूंड पकड़ी, कहा भाई ये तो नीचे की तरफ हाथी तो बहुत बारीक है, उसके दो वो फन जैसे निकले होते हैं, और ऊपर की तरफ जाइए तो वो मोटा होता जाता है। उसके बाद एक ने उसके पैर पकड़ा, कहा ये तो खंबे जैसा है। एक ने पेड़ के ऊपर हाथ रखा, ये तो हेवकल जैसा है। एक ने मालूम लिया कान पकड़ा, कहा इसके कान तो मालूम लिया सूप जैसे हैं। बहुत सारे लोग सूप को आज की जनरेशन तो शायद कम समझती हो, क्योंकि इन्होंने देखा ही नहीं होगा घर के अंदर सूप क्या है, चलनी क्या है, छलनी क्या है। सब ये सब मुहावरे कम इस्तेमाल होते हैं। आजकल की जनरेशन कहाँ जानती है। जो इस वक्त की युवा आ रही पीढ़ी, इसके बाद वाली तो बिल्कुल नहीं जानेगी। ये तो कुछ भी समझ जाएगी, लेकिन इसके बाद की पीढ़ी कुछ नहीं जानेगी। तो अब ईमानदारी से बताइए, जो कुछ उन्होंने बताया गलत बताया या सही बताया? आप कहेंगे जो कुछ उन्होंने महसूस किया बताया। अब जिसने जो बताया था सूप जैसा, आप लिखिए सही है। जिसने कहा खंबे जैसा, उसको लिख लिए। जिसने कहा मतलब सूर जैसा, मतलब अपने अपने। जिसने कहा हेवकल जैसा। अब आप कहिए हाथी की तारीफ ये हो गई कि वो सूप जैसा, खंबे जैसा, हेवकल जैसा, ये क्या अपने माना रखा? नहीं। सेम यही हाल इसी से मिलता जुलता आज हमारे समाज का है कि जिसको जिस नजरिए से देखा जाए और जांचा जाए और परखा जाए, वो वैसे ही नजर आता है। ऐसे ही लोगों ने पैगंबर को अपने नजरिए से देखा। कुछ ने कहा हमारे साथ तो उठते बैठते हैं, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, यानी पैगंबर को बेस्ट फ्रेंड का खिताब दे दिया। एक ने कहा ये तो साहब हम इनके साथ तो लंगोटिया, या अलियाज़ बिल्लाह, मैं मिसाल दे रहा हूं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। मेरा कोई ऐसा मकसूद नहीं है, क्योंकि खुतबा लाइव जाता है, रिकॉर्ड होता है। लेकिन कुछ लोग इतना बचपने का वो चले जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि तुम खाकी हो, वो नूरी है। ये भूल जाते हैं। पैगंबर को अगर रिश्तेदारी में आकर के जोड़ लिया तो कहा साहब कुछ भी हो, मैं रिश्ते में तो इनका क्या लगता हूं। जैसे आजकल के मुहावरे में ये जो बच्चे कभी बखान करते हैं, तो सुनिए, कुछ भी हो रिश्ते में तुम्हारे बाप लगते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी ये बखान है, समझ रहे हैं? यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी इसका मतलब ये होगा कि मिजाज बता रहा है कि सही हो या गलत हो, लेकिन हम तुमसे कम नहीं हैं। लेकिन अगर इसी चीज को पलट करके देखिए कि पैगंबर जाहिरी सूरत में हो सकता है रिश्ते में कोई भी रिश्ता लगता हो, लेकिन अगर उनको हकीकत में देखिए तो वो नूरी पैकर हैं, जो इंसानी पैकर में ये ढाल दिए गए नूर हैं। ये जो इंसानी पैकर में क्या कर दिए गए? ढाल दिए गए। अब जब ढाल दिए गए हैं तो अब हम इनसे कहते हैं अरे मैं रिश्ते में बड़ा लगता हूं तो सलाम आप कीजिएगा, मैं रिश्ते में ये लगता हूं तो ख्याल आप कीजिएगा, मैं रिश्ते में ये लगता हूं तो कंधों पर बिठा करके आप मुझे चलाइएगा। इसका मतलब यानी पैगंबर की शख्सियत और अजमत को हमने क्या किया? रिश्ते के जुमरे में अपने हकीकी मफहूम से जुदा कर दिया।
अब जब हकीकी मफहूम से जुदा कर दिया, नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हो गया कि जो पैगंबर इंसानी करामत के अलमबरदार थे, उनको इंसानी करामत का नहीं बल्कि उनसे ऊपर हम खुद एक स्टेप आ गए कि मैं इनका फला रिश्तेदार हूं, ये तो रिश्ते में मेरे ये लगते हैं। यानी लोगों के जहनों में ये गया कि जब इनका किरदार ऐसे होगा तो रसूल का किरदार कैसा होगा। तो हमने तो इंसानी करामत को पहुंचाया ही नहीं, इंसानी करामत को तो पहुंचने ही नहीं दिया, इंसानी बातों को आगे तक जाने ही नहीं दिया। अब जब जाने नहीं दिया तो क्या हकीकी मफहूम पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। अब जब नहीं पहुंचेगा तो ऐसे ही ये अय्याम अज़ाए फातिमिया का मौका चल रहा है, सही है, मौका चल रहा है। आज मौलाना अलमदार की बात को आप सोचिएगा, सुनहरे हरफों में जाकर के अपने घर में लिख लीजिएगा कि जब हमारी रिश्तेदारी दुनियादारी में किसी से होती है तो हम उस रिश्तेदारी को कितना निभाते हैं? बोलिए जरा सा, कितना निभाते हैं? इतना निभाते हैं कि मालूम दिया कि अगर हम फला मौके पर पहुंचे नहीं तो रिश्तेदारी पर सवालिया निशान उठ जाएगा। ये जितने सादात किराम हैं, कि इनकी रिश्तेदारी शहजादी से नहीं है? बोलिए जरा सा, है? तो जब मां का गम होता है, मजलिस होती है, तो ये रिश्तेदार कहां गायब होते हैं? सलवात तो पढ़िए कम से कम। अब आप फैसला कर लीजिए कि दुनिया की रिश्तेदारी में अगर आप पहुंचे नहीं तो साहब रिश्तेदारी खतरे में पड़ जाएगी, और शहजादी की रिश्तेदारी में अगर आपने रिश्ता ना निभाया तो ईमान, अकीदा, आकिबत सब खतरे में पड़ जाएगी। अब फैसला आप कीजिए, दुनिया लेनी या आखिरत लेनी है। सलवात और पढ़िए सब मिलकर। मेरी बातों को जरा सा नोट कर लीजिएगा, ये मैंने तल्ख जुमलात कहे हैं ताकि वो अफराद की जिनकी जद्दा की मजलिस बर्पा हो रही है और घरों में, हाँ मजलिस कहीं पर जाएं, कोई जरूरी नहीं कि सफेद कॉलोनी है, कहीं जाएं, लेकिन कम से कम जद्दा की मजलिस में शिरकत करें। लेकिन जब यही जद्दा की मजलिस होती है तो सियासत कितनी होती है? सियासत इतनी होती है, अरे वो तो वहां है, कहां? ज़ैनब क्लासेस में। मुझे तो एक हैरत हुई अभी कल परसों, और अभी एक वाकया और भी बताता हूँ, आपके तवज्जुहात को मबजूल करना चाहता हूँ ताकि आप उन चीजों का मुतवज्जे रहिए कि समाज खेलता कैसे है और हम खेल कैसे जाते हैं। अभी बुध के दिन ज़ैनब क्लासेस में 18 मजलिसों का प्रोग्राम चल रहा है। आज अगर देखा जाए तो 15वीं मजलिस है आज, वो लगा दिया गया। और हमारे यहाँ की बच्चियां मौजूआत पर, शहजादी से मरबूत मौजूआत हैं, 2-2 खिताब होते हैं, दोनों बच्चे मौजू पर पढ़ते हैं। उस पर्चे को किसी ने फाड़ करके फेंक दिया। मैं तो उसको आखिरत तक नहीं छोड़ूंगा, यानी ये मेरे लिए, मैं मिंबर से ऐलान कर रहा हूं, मगर ये कि वो आकर के अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई गलती हो गई, वरना शहजादी के सामने ला करके खड़ा कर दूंगा मेरी खता क्या थी, किसके एलामिया के लिए बुलाया गया था। आपसे पैसा नहीं मांगा है, आपसे आपकी जद्दा की मजलिसों में शिरकत मांगी है, और उसके बैनर को फाड़ने का मतलब क्या हुआ? यानी आप बगावत ज़ैनब क्लासेस से नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट पंगा ले रहे हैं शहजादी से, समझ रहे हैं। और दूसरी चीज अगर आप गौर कीजिए, यहां मजलिस में अशरा चल रहा है, अशरे का पोस्टर बाहर लगा हुआ है, और उसी पोस्टर को छिपाने के लिए उसके ऊपर एक पोस्टर और लगा दिया गया। इसका मतलब क्या था? देखिए, यानी मैं सिर्फ मुतवज्जे करा रहा हूं कि यहां शहजादी की मजलिस का अशरा नहीं चल रहा है, चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर उसको ढक दिया गया, उसके ऊपर एक बैनर और।
ताकि ये छिप जाए, उसके बाद वाला बयान जो है वो ओपन हो जाए। अब आप जरा सा गौर कीजिएगा, उसी में से एक चीज और गौर कीजिए। अभी रात एक इंतकाल हो गया, कल इंतकाल हुआ। मैं हुस्ने जन से एक बात कह रहा हूं कि साहब किसी को शहर में कॉल की गई, आप आइए, नहला धुला दीजिए, गुस्ल करवा दीजिएगा, फला दिमाग ये वो। तो उन्होंने कहा नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? कहा साहब मौलाना अलमदार साहब। मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं हुस्ने जन। कहा अगर वो पढ़ाएंगे तो फिर मैं, आप लोग कोई नतीजा और नजरिया ना लीजिएगा, तो मैं नहीं आऊंगा। क्यों? कहा हमारे वाले मौलाना से आप जो, यानी मौलाना भी हम कह देते हैं नमाज वो पढ़ाएगा। मुझे उनकी ये बात बहुत प्यारी लगी। प्यारी कैसे लगी? कि कम से कम वो अपने मौलवी के वफादार तो हैं, वरना इतना बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, उस बड़े प्रोग्राम में अपने इलाके के मौलवी को कोई जगह आप देना नहीं चाहते हैं और पूरी सरपरस्ती कराना चाहते हैं, तो कम से कम वो हम सब से तो बेहतर है जो अपने मौलवी का साथ तो दे रहा है। एक सलवार पढ़िए सब मिल करके। समझ रहे हैं? मुझे उसकी बात बहुत प्यारी लगी कि कम से कम वो अपने मौलवी को साथ तो दे रहा है, और हम इतना बड़ा प्रोग्राम अपने इलाके में कर रहे हैं। और उसके बाद जवाब ये है, हमने किसी मौलवी का नाम नहीं दिया। शहर में के मौलवी का नाम देना और इलाके में जहां आप कर रहे हैं उस इलाके के मौलवी का नाम देना, ये कंफ्यूजन है। क्योंकि जहां जिस इलाके के मौलवी प्रोग्राम होता है उस इलाके के मौलवी को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाता है, दुआ में, मजलिस में, सरपरस्ती में, किसी। लेकिन आप बता रहे हैं कि हमारा ताल्लुक जो है, हम किसी को सरपरस्ती नहीं चाहते, हम उम्मी चाहते हैं और शिरकत भी चाहते हैं। तो फैसला आपका है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। लेकिन ये याद रखिएगा, शहजादी की मजलिस में कहीं पर भी आइए, शिरकत कीजिए, क्योंकि ये 10 दिन का प्रोग्राम है, और जिसका प्रोग्राम 1 दिन का इतना वो है, उसकी जद्दा का प्रोग्राम ये चल रहा है 10 दिन से। तो 1 दिन के लिए जब हम इतना कोशिश कर सकते हैं, तो 10 दिन के लिए कितनी कोशिश होनी चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र।